फ्लैम्बॉयंस मुझे लगता है वो झूठी थी, वो एक्चुअली ना एक्वायर्ड था। मुझे ऐसा लगता है वो स्टाइल ना हम लोगों ने शाहरुख खान सर को देख के सीखा। तो एक मोमेंट था, आई हैड टू टेक अ वॉक फ्रॉम हियर एंड रजत सर इज स्टैंडिंग देयर। द वॉक हैज टू बी इन स्टाइल एंड आई नो आई कैन डू दैट एंड आई न्यू दैट यू हीरोइज्म कैसे आप उसमें डालते हो, कैसे मचीज़्मो डालते हो उसके। व्हाइल वॉकिंग इन दैट मोमेंट आई वाज टेलिंग माय सेल्फ ये नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जिंदगी जो है वो समझी गहराई में जाती है पर जी सतह पे जाती है। So the journey actually transcended from being fearful to the fearlessness. बट दो ही चीज़ें रहती हैं, एक तो आपका उस लम्हे में रहना जिस लम्हे में आप हो जीवन के, which is living the moment, एंड सेकेंड आप सुकून में रहो और आनंद में रहो अपना। बाकी सारी चीज़ें होती रहती हैं, होती ही रहेंगी। Most of us actors have come to this city to pursue our dreams as an actor or as whatever form of art you want to pursue. The idea was that we enjoyed doing what you were doing, right? Two artists in a frame, they're serving a story. प्रॉब्लम क्या होता है जब एक आर्टिस्ट का पर्सनल एम्बिशन टू शाइन आ जाता ना तो गड़बड़ हो जाती है। We lost a lot of money on that. We lost a lot of money on that. I think we should have sold the film as a Netflix original or an Amazon original कि अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। इसका उल्टा भी आपने बोला कि जीवन ऐसे जियोगे जैसे अभिनय करो। Welcome to the first episode of बातें बनाते। Today we have with us हिमांशु अशोक मल्होत्रा, जो पिछले 20 सालों से बतौर एक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। He's done it all. Web shows, TV, movies, reality TV, you name it and he's done it. I've had the pleasure of knowing him as a friend, a senior, and above all, a person that I respect and admire. Let's dive into his journey as we kick off बातें बनाते। Let's start. Okay, welcome everyone. Hi Himanshu bhai. Hello. How are you doing? I really want to know how you're feeling today. I'm feeling good, yeah. I'm feeling usually at peace only all the time. मेरा बस वो रहता है कि शून्य पे रहूं हर बारी। So for people who don't know Himanshu bhai, and I've recently had the pleasure of knowing you, आप actually हमेशा एक equilibrium पे रहते हो। I really want to know about that. Like let me just like something more about like how is this possible, and were you always like this? No, I wasn't like this. Obviously, nobody is like this. I think this is something that you work upon over a period of time. I think initially, in the growing up years, it was very reactionary and very impulsive, maybe. But I think over a period of time, I realized as things pass by, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो life के अंदर, good, bad, worst, ugly, failure, success, and everything. And you realize at the end of that, and I think with me, what happened was, which still is there, so I had a lot of energy because I was a cricketer. So I remember I used to be this excited child, playing, whether it's dramatics in school or talking to someone, some kind of excitement was always there. I think too much of energy. And then I think over a period of time, I realized कि वो सारी energy ना ऐसे बिखर रही है and it's not able to lead in any direction. So I decided कि वो सारी energy को समेट के let's just give it a direction, and that's what I did. I remember seeing this X-Men. उसमें है ना वो there's this, I don't know the name of the boy who had this power of fire, and not the Wolverine, there's another boy who used to wear those glasses and everything, the one who was opposite Jane. Exactly. I'm forgetting the name. The one who had the exactly. So he had this power of fire, and then the fire is just going haywire and just trying to it just goes, and then all of a sudden then somebody tells him to focus his energy and put it in one direction. I think that's what I did, and then over a period of time learning about it, understanding about it, I realized कि वो सारी energy को I think समेट के रखना और सही समय पर उसका इस्तेमाल करना। आपने चश्मे पहन लिए? मैंने चश्मे पहन लिए। I remember something like this, and also I remember. Now you're seeing. Would it be right to say you're seeing the world from a different lens now? I am seeing the world as it is, not from any lens. Oh, that's interesting. Yeah, because what happens is we are very perceptive. We all are. जो जिस तरह का हमने चश्मा पहना होता है ना, हम लाइफ वैसे देखते हैं। इट्स लाइक मिस्टर इंडिया टाइप्स। अगर आपने रेड कलर का चश्मा पहना तो दुनिया रेड दिखती है, बट दुनिया एक्चुअली रेड है नहीं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज आई स्टार्टेड रीडिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द जर्नी ऑफ हु एम आई, ऑल दोज थिंग्स, आई थिंक फिर वो आपको ऐसे कहते हैं कि सारी कंडीशनिंग जो हुई है ना, उसको थोड़ा ड्रॉप करते हैं यार। मतलब वो सारी चीज़ें जो हमने सीख ली हैं पुरानी, उधार की चीज़ें हैं, जैसे नाम भी उधार का मुझे लगता है, नाम भी किसी ने माँ बाप ने रख दिया, नाम भी मेरा अपना चुना हुआ नहीं है, तो सारी चीज़ों को ना थोड़ा ड्रॉप कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सारी कंडीशनिंग को कोशिश यही है कि जैसी चीज़ें हैं, जैसा जो है वैसे ही देखना, अपने दिमाग में कहानी नहीं बनानी किसी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में या किसी पास से। जैसे चीज़ें आएंगी वैसे देखेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
doing some research about you, मैंने आपका काम भी देखा थोड़ा, of course you know I did it in a very short span of time, तो बहुत ज़्यादा नहीं, but जितना देख पाया मैं, basis of that I saw your very fun interview with your wife as well. अमू के साथ, oh yeah, right, it was so nice हमने to ऐसे see. शूट कर लिया था, I remember it. Yeah, but it was very nice to see because it's so real and so you know heartfelt like that. Yeah. You spoke about, you know, both of you spoke about there was a time period in your life when you were flamboyant. You're from Delhi, right? I was. And right now you're just talking about how there was a lot of energy. Yeah. Would it be right to say there was a lot of rebellious energy with Delhi? rebellious. I was not a very rebellious child, but soft rebel हो सकता है. Soft rebel इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे लगता है जो लड़का 20 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, you know, सारी लग्जरीज छोड़ के बॉम्बे आने के लिए कोशिश की और आ भी गया, तो कहीं ना कहीं मुझे बाद में समझ में आया. मुझे लगा था कि पहले मैं बहुत ओबीडियंट चाइल्ड हूँ, ये गलत फहमी थी. नहीं, मैं मान सकता हूँ. हाँ, हो भी सकता है, बट वो आई थिंक प्रॉबेबली इसलिए था कि थोड़ा सा आई वोंट से पीपल प्लीजिंग, बट या समथिंग लाइक दैट ऑन दोस टर्म्स कि मतलब यार सब आसपास ठीक रहे, उस तरह का सब आसपास खुश रहे. हाँ, पता नहीं, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू गेज एट दिस पॉइंट. You didn't like upsetting anybody? I think I was more into appreciation. I think that was something that literally drove me at that point of time. तो फिर वो होता ना, आप अच्छा बच्चा बन के रहते हो तो सोसाइटी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, घर वालों के हिसाब से, रिलेटिव के हिसाब से आपको सारी शाबाशी मिलती है. So there's a pat on the back. बताओ ना इस टाइम के बारे में बताओ मुझे. वो I really want to know about that flamboyant Himanshu as well. Flamboyance मुझे लगता है वो झूठी थी, वो एक्चुअली ना एक्वायर्ड था. मुझे ऐसा लगता है वो स्टाइल ना हम लोगों ने शाहरुख खान सर को देख के सीखा. मुझे लगता है कि वो जब उनके अवार्ड फंक्शन में परफॉर्मेंसेस आती थी, द वे ही वाज चार्मिंग है, व्हिच ही स्टिल इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और वो सारी चीज़ों का ना मतलब हमें था कि अब when the dream of not becoming a cricketer, could not become a cricketer, did not happen, then decided to become an actor. तो फिर एक्टर बनने का भी ये था कि फेमस होना है और हीरो बनना है. तो हमें तो पता नहीं हीरो कैसे बना जाता है, तो जिसको देखा सामने उसकी सारी चीज़ें एक्वायर्ड कर ली. तो मुझे लगता है वो झूठ होता है. वो अब समझ में आता है धीरे धीरे. उस समय मैंने एक्वायर्ड कर ली क्योंकि वो आपका अपना अंदरूनी तो है नहीं. तो आपने कौन कैसे स्टाइल मारता है, किसने कैसे देखा, watching a lot of Hollywood flicks and all those things, and then watching all the Indian cinema and everything, and then you want to be a hero. तो आपका डांस, आपकी एक्टिंग, आपका मार्शल आर्ट्स, आपका वो सारी चीज़ों का अमालगमेशन था. And then obviously आप देख रहे हो तो सारा फ्लैम्बॉयंस वहीं से आ जाता है ना. किससे बताओ ना कोई मतलब what फ्लैम्बॉयंस है. अतरंगी कपड़े पहनना मुझे याद है. Like paint a picture for me. I remember you spoke about the blue netted t-shirt as well. मेरा एक डिजाइनर था when I was 19. I remember a friend. Yuvraj. I know. You have done my homework well. हाँ, nice. So Yuvraj was there. Yuvraj was with me in SPB batch of Shamak. हम लोग साथ में शामक में थे. Right. And he used to also dance. एंड उसमें और ही यूज्ड टू आल्सो डिज़ाइन क्लोथ्स फॉर शामक. तो हम वो ब्लिंग वाले कपड़े पहन के स्टेज पे डांस करते थे स्पेशल पोटेंशियल बैच में. तो जब बॉम्बे आ गया, जी सिने स्टार्स हुआ, पहली फिल्म मिल गई, तो मैंने युवराज को कहा यार व्हाई डोंट यू डिज़ाइन क्लोथ्स फॉर मी एंड एवरीथिंग. और हमें था यार वो अब स्टार, मुझे याद है जो हमारे बाकी के सारे पार्टिसिपेंट्स थे तो ऐसे बोलते भी थे कि यार हम सब तो एक्टर्स हैं, हिमांशु स्टार है, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं और जिस तरह से बात करते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. तो मुझे लगता है वो सारा काफ़ी बनावटी था एक तरह से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट जितनी उस समय की समझ थी उसके हिसाब से वो सही था. उसके बाद जैसे जैसे समझ बढ़ती है तो आपको समझ में आता है कि शायद ये आपका अपना अंदरूनी हिस्सा नहीं. मे बी दिस इज़ नॉट हु यू आर, यू जस्ट ट्राइंग टू portray an image of who you want to be, something like that. तो वो जाली वाले कपड़े पहनना, blue t-shirt और some pants and all those things, very अतरंगी सा कुछ, बस तरह का कुछ था. Safe to say it's superficial? Superficial, of course. It was superficial. Internally, I was never like that, to be very honest, because I think मैं बहुत ही शुरू से सेंसिटाइज्ड चाइल्ड रहा हूँ. You have been? हाँ, I've always been. और थोड़ा सा ओबीडियंट भी रहा हूँ, सबकी सुनना, सबका ध्यान रखना, किसी को हर्ट ना हो, मुझे भी हर्ट ना हो, सारी चीज़ों का. और बेपरवाह बिल्कुल नहीं. अब मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब से ये आत्ममंथन चल रहा है कई सालों से, देन आई रियलाइज आई सेड यार बहुत हो गया, मुझे बेपरवाह होना है. सो आई डोंट केयर अबाउट कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता. तो ये, लेकिन ये पहले नहीं था. बहुत साल तक इट स्टेड. आई थिंक शायद वो वैलिडेशन होती है एनवायरनमेंट से या अप्रिसिएशन होती है. बट धीरे धीरे समझ में आया वो सारी अप्रिसिएशन आपको ना खोखला करना शुरू कर देती है. दिस इज व्हाट आई रियलाइज फॉर माई सेल्फ, दैट वो ना केज कर लेती है. आप बंदिशों में बन जाते हो. एंड देन आई रियलाइज अबाउट माई सेल्फ कि यार मैं ना शायद काफ़ी आज़ाद किस्म का इंसान हूँ, मुझे बड़ा आज़ाद रहना पसंद है. तो कुछ ऐसा था. बाकी ठीक है, वो भी एक टाइम था.
तो आज भी मतलब you know sometimes when I'm acting I remember I was just doing a scene with Rajat Kapoor sir अभी 2 दिन पहले for the show that I'm doing. तो एक मोमेंट था I had to take a walk from here and Rajat sir is standing there. और मेरा बहुत ऐसे वो मुझे याद है मेरे अंदर का एक हिस्सा जो कह रहा था कि द वॉक हैज़ टू बी इन स्टाइल एंड आई नो आई कैन डू दैट एंड आई न्यू दैट वो हीरोइज्म कैसे आप उसमें डालते हो और कैसे मचीज़मो डालते हो उसके अंदर किस तरह के स्टाइल में आप देखते हो किसी को वो सब चीज़ें की हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें समझी हैं बट आई रियलाइज आई सेड एंड व्हाइल वॉकिंग इन दैट मोमेंट आई वाज टेलिंग माई सेल्फ से ये नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि अगर ये कर लिया तो फिर आई विल बी कॉट इन द इमेज ऑफ not from the audience but from myself. I don't want to cater to that image of being a hero or I just want to be very authentic and very true to my being and to the character I'm playing. And a lot of this journey as an actor starts internally, right? It does start internally. As to what you want. Yeah. Vis-a-vis what you don't want. Right? Why do you think I wanted to, like get you as the first person out here, right? My first motivation was that I want to get somebody who's really authentic. Obviously, you have a great energy, great aura around you, and that's I really wanted to start this with you, and thank you for being here. Thank you. I'm happy to be here. और इस जर्नी के दौरान मैं ना because I love the whole process of creation. जो कला है जो फन कहते हैं जिसको हम फनकार जो होता है उसकी एक जर्नी रहती है और उसका एक पर्पस रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है तो मैं ऑल्सो I'll be honest here I'm being a little selfish क्योंकि जितने लोगों से आप मिलो उतनी कहानियां आपको पता चलती है उतने तरीके आपको पता चलते हैं and you also grow as a human being as an artist. For me also I would say it's not that you're sitting on that chair. For everyone who will be coming here they're also coming. So what happens is when we speak to someone now a part of us is also revealed to us. Why are you? Maybe पता नहीं कौन सी बात maybe I can learn from you and maybe कौन सी बात जो मेरी ज़बान से निकल जाए which is like a reminder to me and it is always like that when we speak to people it's like a reflection of us in them and it comes to us. It's amazing how you can add tranquility to everything. It is amazing. I wish if I get an iota of that from him. It's amazing. पता नहीं यार कैसे है ये तो मुझे भी नहीं पता. Anyway, I want to start talking about your journey as an actor. Right? Give me like a quick timeline. Quick timeline is यार एक्चुअली ना शुरुआत तो मुझे लगता है 9th स्टैंडर्ड में हुई थी व्हेन आई वाज डूइंग अ मोनो एक्टिंग कंपटीशन और मेरे एक दोस्त की मुझे हेल्प करनी थी एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही सेड यार तो कुछ कर ले और 2 हफ्ते के बाद मोनो एक्टिंग कंपटीशन ही वाज द विवेकानंद हाउस वाइस कैप्टन सो ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन तो उसकी मदद करने के लिए आई पता नहीं मैंने क्या सोच समझ के उस समय हाँ कर दी मेरे घर में किसी ने एक्टिंग नहीं की मेरे घर वालों ने किसी ने एक्टिंग की हमने कभी सोच नहीं आई वाज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट and in 2 weeks I prepared. I remember there was a film called क्रांतिवीर और इसमें नाना पाटेकर वो फिल्म ना केबल पे बहुत बारी आती थी तो वी हैड सीन दैट एंड वी वर आल्सो बिग फैन ऑफ नाना पाटेकर इन दैट फिल्म तो उसमें ना ऐसे एंड में ना बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स होते थे जब उसको ना फांसी दी जा रही है फिल्म के अंदर एंड ही स्पीकिंग मोनोलॉग एंड एवरीथिंग और मैं ना रटने में माहिर था चीज़ें किताबें मग करने में कॉपीज मग करने में पढ़ लेता था सब रट लेता था तो मुझे लगा एक्टिंग तो आती नहीं तो ये रट लेता हूँ और ये स्टेज पे जाके बोल दूंगा एग्जैक्टली जैसे उन्होंने किया उसको कॉपी करके सो आई थिंक आई डिड दैट एंड आई वॉन द फर्स्ट प्राइज देन वो ना चस्का लग गया एप्रिसिएशन का और प्राइज का वो पहले से शुरू से था वो 2nd 3rd स्टैंडर्ड से था कि वो चस्के चाहिए थे चाहे वो व्हेन आई वाज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट इन माय स्कूल 2nd 3rd स्टैंडर्ड में 2nd 4th में 1st 5th में 1st 6th में 1st एंड इट वाज ओनली बिकॉज आई थिंक एप्रिसिएशन वहाँ से शुरू हुई सारी चीज़. You wanted to ask something. Yeah, I was just trying to understand. So you said appreciation और जो उसका रिवॉर्ड जो आउटकम मिला उसका चस्का मतलब तालियां कह लो या शाबाशी कह लो या appreciation. That's also true for every artist, right? हाँ, it's true for artists. It's true for every human being actually. We all want to be appreciated. वो बात अलग है जब आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर जाते हो तो आपको समझ में आता है कि ना आपको सम्मान का मुँह रखना है ना अपमान का भय रखना है, क्योंकि सम्मान का मुँह रखोगे तो अपमान का भय भी आएगा. तो अगर आपको शून्य पे रहना तो दोनों का त्याग करना पड़ता है. ये बहुत सालों के बाद समझ में आता है, बट उस मोमेंट पे नहीं समझती, छोटे थे, जाहिर से बात है. सो वी वांटेड टू बी अप्रिशिएटेड एंड देन द जर्नी स्टार्टेड. फिर मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स, फिर 9th स्टैंडर्ड में, फिर 10th में शाहरुख खान किया था राम जाने का, फिर 11th में आई रिमेंबर उमर शरीफ यूज्ड टू वो बकरा किश्तों पे वगैरह उनके प्लेज आते थे. 12th में कुछ और किया, हाँ बस वही सब किया. बट इट वाज प्राइमरीली जस्ट टू डू दिस फॉर सम टाइम
एंड गेट सम अवार्ड्स एंड बाजू में क्रिकेट चलता रहेगा, ऐसा ही था। तो जर्नी की शुरुआत 9th स्टैंडर्ड में हुई, बट आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। इन फैक्ट I had a girlfriend at that point of time. I was like 15-16 उस समय, तो she was a model. Right. प्रोफेशनल राहुल दत्ता के पास फोटोग्राफी वगैरह के लिए जाती थी, तो एक दो बार मुझे ले गई, तो राहुल ने मुझे भी कहा, फिर we broke up, but then I started modeling and everything. तो जर्नी फिर वहाँ से शुरू हो गई, but I think main जर्नी शुरू हुई and thanks to that contest which was called Zee Cine Stars की खोज 2004. It was a very very popular show back then. At that point of time, Yeah. 2 decades before. So उस show में I think I participated and won it. मतलब not won the show, but won it from the particular city that I contested from. Varanasi I contested from. Okay. फिर वहाँ से I think सारी journey to become an actor started. Having still said that, वहाँ पे I was amongst the top 3 of the whole country, where almost 1 million candidates applied. But फिर भी मुझे लगता था कि मुझे ना acting आती नहीं थी। वहाँ पे किसी तरह हम लोगों ने कर लिया कि मुझे ऐसा लगता है थोड़ी शक्ल अच्छी थी, थोड़ा डांस कर लेते थे, थोड़ा बहुत डायलॉग मग करके बोल देते थे। स्मॉल कॉन्टेस्ट, बट आई थिंक स्टार्टेड 2005 जब पहली फिल्म मिली, तो देन आई मेट अ टीचर, रुपेश सर हैं, वो किशोर अमित कपूर के पास सिखाते थे। He's been a mentor. हाँ, he's been a mentor, you know, उनके साथ पहली फिल्म की तैयारी की थी जो राज सिप्पी सर के साथ की थी। तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई जब उन्होंने मुझे किताब दी थी द पावर ऑफ नाउ, which is by Eckhart Tolle, and he said सारी एक्टिंग ना इसमें, because मेरे अंदर ना जेस्ट बहुत थी, शायद आज भी और शायद ही हमेशा रहेगी, सीखने की बहुत जेस्ट थी शुरू से। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि और अच्छी एक्टिंग कैसे करते हैं, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, ये वो। आई थिंक वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई टू बिकम अ बेटर एंड बेटर एक्टर, एंड देन इन द प्रोसेस व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड डाइविंग डीप इनटू द आर्ट. And when you start diving deep into the art, I think last time we also spoke about it, वो ना जैसे अनियन होता है ना, वो सारे layers peel off होने शुरू हो जाते हैं, right. क्योंकि art will peel off everything which is superficial. तो उसने peel off करने शुरू किए, जैसे peel off शुरू हुआ तो फिर automatically the purer being starts to come out. But इसमें process है, it takes a lot of time. 100%. It's easier said than done also. हाँ, मतलब वो अपनी इच्छा भी होती है, बहुत सारे लोगों की इच्छा नहीं होती कि इतना डीप डाइव करने के लिए। मुझे हमेशा से थी यार, कूदते तो हैं, देखेंगे क्या होगा। मेरा एक I'm not really saying it's a counter thought per se, but I also do feel कि जिंदगी जो है वो समझी गहराई में जाती है, समझी तो गहराई में जाती है, पर जी सतह पे जाती है। पता नहीं जी सतह पे भी जाती है और जी गहराई में भी जाती है, दोनों साथ में चलता है। 100%। नहीं, मजा तब है कि एक तो है कि आप अगर आप हमेशा गहराई में ही रहे तो बहुत गहरा हो जाता है, too much after a point of time। और अगर आप सतह पे रहे तो आप गहराई में जा ही नहीं पाओगे। ये भी करेक्ट है। तो मजा तो ये होएगा ना कि आप जब समझते हो उस चीज को, you know, like I was watching because I was doing some। एक और खास बात है, जिंदगी ना जितना मर्जी समझ लो, समझ में आएगी नहीं। जिंदगी सिर्फ जी जाती है, जी जाती है। नहीं, मैं कल एक मनोज बाजपेयी जी का भी मैं देख रहा था, I was just trying to prep up कि अच्छा मैं you know how to go about the entire session। So I was like, okay, let me do some research, understand what's happening, what's not happening out there। तो मनोज जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि जैसे हम कैमरा एक्टिंग करते हैं तो लोग बोलते हैं कि कैमरा को भूल जाओ कि सामने कैमरा है, बट ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि कैमरा को भूलो कैमरा को समझने के बाद। सही बात है। You can't be a new actor who's come in, who's acting in front of the camera। I understand what he's saying। अवेयरनेस की बात कर रहे हैं बेसिकली। यस, एक्चुअली बड़ी अच्छी बात है। समझे जिंदगी गहराई में तो दिस इज, हाँ, बट वो एक्चुअली इसी के साथ लागू होता है कि आप जब समझ जाते हो ना, जितना भी थोड़ा बहुत आप समझते हो, उसके बाद उसकी अवेयरनेस रहती है और फिर आप जीते रहते हो, आप आनंद में, मस्ती में, मजाक में। आई थिंक यू जस्ट लिव लाइफ 100%। समथिंग लाइक द कैमरा थिंग दैट 100%। ऐसा कुछ है। So we were talking about your acting journey। It started with Cine Stars की खोज, उससे पहले obviously स्कूल में आपने जो करा, then moving on to you started learning acting with you know Rupesh Dobriyal ji, जो mentor रह चुके हैं। Then what was next? उसके बाद यार रुपेश सर से मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि फिल्म मिल गई थी 2005 में राज सिप्पी सर की, और वो फिल्म मिल गई तो मुझे पता नहीं था कि तैयारी कैसे करते हैं।
तो रुपेश सर के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी थी बिकॉज किशोर अमित कपूर वॉज देयर, वो हमारे साथ जी सिने स्टार्स में थे, तो रुपेश सर आते जाते रहते थे एंड दे वर अ को टीम टू किशोर अमित कपूर जी। एंड तो उनसे हाय हेलो हुई, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर फिल्म मिल गई है, पता नहीं कैसे करना है, तो ही सेड मैं हेल्प कर देता हूँ, एंड देन दैट्स व्हेयर द बॉन्ड स्टार्टेड। इट्स बीन 2 decades, आई कीप मीटिंग हिम, वी कीप टॉकिंग अबाउट लाइफ, एक्टिंग, एवरीथिंग इन बिटवीन। बस उसके बाद फिर आई थिंक वो फिल्म की, राजसिप्पी सर की, वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई। उसके बाद भी एक फिल्म मिली थी मुझे, That must have hurt though. उस समय यस यार, क्योंकि फिल्में करनी थी। अब वो हीरो का जो दिमाग में था कि यू वांट टू बी अ 70 mm हीरो, और वो सारी चीज़ें टेलीविजन से तो मुश्किल था, फिल्मों से हम पले बड़े हुए थे देख के। Of course. बट वो 2005 में शूट की, 2006 तक इंतज़ार किया, 2007 तक इंतज़ार किया कि अब रिलीज़ होगी, बट नहीं हुई। 2006 में फिर एक कोई फिल्म मिली थी, साइनिंग वाइनिंग भी दे दिया था, बट वो भी शुरू नहीं हुई। फिर आई थिंक 2007 एंड में, around that I think I decided, I was speaking to my mom back in Delhi and मॉम से बात कर रहे थे कि क्या करना है, she was like देख लो बेटा, अगर कुछ नहीं हो रहा तो बिजनेस है, डैड का वापस आ जाना। हमारे पंजाबी परिवारों में ऐसे कुछ होता है। Typical. हाँ टिपिकल। तो आई सेड नहीं, तो कह रहे हैं फिर खाली थोड़ा ना बैठना है, टेलीविजन ही कर लो। तो मुझे याद है मेरे को था कि यार टेलीविजन तो नहीं करना है, बट कर लेते हैं, अभी कोई चॉइस नहीं है। देन आई जम्प्ड इनटू टेलीविजन एंड मुझे याद है उस समय भी मेरी बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी कि यार वो सेकंड लीड ही करना है, मेन लीड करेंगे ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे, और पॉपुलर चैनल्स में नहीं करना है। उस समय जी नेक्स्ट एक चैनल था, बिंदास था, तो उस तरह के चैनल्स पे करना है। बट वो सब किया फिर आई थिंक, बट वो फिर जर्नी जब शुरू हुई तो फिर आप वन चैनल टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर करते करते काफ़ी सारे टेलीविजन शोज, एक्सटेंसिव वर्क, बहुत सारे टेलीविजन शोज। मैं कल आपकी फिल्मोग्राफी देख रहा था तो मुझे काफी स्क्रॉल करना पड़ा टू गो थ्रू ऑल द फिल्मोग्राफी। आई थिंक अपने आप ही हो गया यार, वो एक शो में काम किया, फिर वहाँ से किसी ने फ़ोन करके दूसरे में बुला लिए, ख़त्म होने वाला था, किसी ने दूसरे में रिकमेंड कर लिया। मुझे लगता नहीं मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी, बस कोई ना कोई बुलाता ही गया। एक शो खत्म हुआ तो दूसरे ने बुला लिया, दूसरे ने किया, वो 2, 4, 5 हज़ार रुपये बढ़ा देते थे और मैं बढ़वा लेता था अपने, बस इतना ही होता था। बैक टू बैक वन शोज, ये होता था। Correct me if I'm wrong, around that time TV was also peaking. TV was speaking at that point of time. Right? Yes. I'm talking about the era of Balaji television shows. Yes. मतलब उसके बाद era तो पहले 2000s में शुरू हो गया था, but I'm talking about 2010, 12 तब भी चल रहा था, वो सारी चीज़ें चल रही थी। बट मैंने उस समय बिकॉज मुझे था कि ओवर एक्सपोज नहीं होना, तो बालाजी के शोज़ किए भी नहीं, शायद ऑफर भी नहीं हुए, ध्यान भी नहीं दिया। बट मुझे था यूथ बेस्ड शोज़ करने, और बस वही करता रहा, करते करते फिर जो बाकी, उसके बाद बीच में एक यशराज का शो मिला था, विच वॉज अ वेरी पॉपुलर शो, 7 करके, वो बड़ा कमाल का शो था, तो विच वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्समैन एंड हीरोज। तो हमें था यहाँ से शायद लॉटरी खुल जाएगी, यहाँ से कोई रास्ता बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है लाइफ में। आप जो सोचते हो ना वैसे लाइफ में होता नहीं है। होता वो है जो यूनिवर्स चाहता है आपके लिए, हाँ जो होता है। तो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज द जर्नी प्रोग्रेसेस आई रियलाइज्ड अबाउट माई सेल्फ कि मेरी प्लानिंग ना बेकार है, बेफजूल है, मुझे प्लानिंग छोड़नी पड़ेगी, मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। एंड सो सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी प्लानिंग जो मैंने सोची थी कि ये रास्ता यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से ये बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा, फिर ये फिल्म मिलेगी, फिर ये हो जाएगा, आई थिंक सब मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट डजंट वर्क। मेरे लिए बकवास है, पर्सनली मेरी लाइफ के लिए वर्क नहीं करता, ये मुझे समझ में आ गया। मेरी लाइफ के लिए वर्क करता है सिर्फ समर्पण। इट्स वेरी रेयर टू कम अक्रॉस पीपल हु हैव द एबिलिटी टू सरेंडर एज वेल। हाँ, because surrender demands a lot of courage. 110%. It does demand a lot of courage. 100%. हाँ, I'm sorry to cut you in. ये जर्नी इसलिए भी थी क्योंकि शायद एनवायरनमेंट ना घर का थोड़ा सा फेयरफुल हो गया था एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मुझे ना मेरा जो क्रिकेटर बनने का ड्रीम था वो भी छूट गया था, बिकॉज आई हैड दिस फियर ऑफ फेलियर। तो मुझे एक टाइम पे रियलाइज़ हो गया था यार लाइफ में ना हिमांशु कुछ भी करना, बस इससे परे होते चले जाना। सो द जर्नी एक्चुअली ट्रांसेंडेड फ्रॉम बीइंग fearful to the fearlessness. The journey is this, and it's an ongoing journey. It's a work in progress. It's transition. इसीलिए मुझे लगता है कि वो fear और desire ना साथ साथ घूमते हैं। 100%. कि जिस चीज़ को पाने की इच्छा है उसी को खोने का डर होता है ना। तो वो सारी चीज़ें फिर समझ में आया कि यार ये तो साथ साथ चल रहे हैं, वन साइड बोथ द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। तो पहले थोड़ा सा शायद डिज़ायर्स को कम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे फिर फियर हट जाता है, फिर आपको परवाह नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो फिर थोड़ा सा ना फिर मजा आना शुरू होता है। Which is the space, yeah, which is the space to surrender to, yeah. 100%. Now, when I went through your filmography, I've seen you've done, as far as entertainment industry goes, you've worked across mediums. Yeah. TV,
You've done a lot of it, fiction and non-fiction as well. Non-fiction, Reality, yes, you've won reality shows yourself, right? You've been a part of web shows is something that you're web shows also doing doing, now, and you've doing done as also well. at the moment now. Yes, at the moment. Rana Naidu, season 2, he's a part of it. So, and you've been a part of movies. I've been a part of movies, luckily, yes. Good movies that have done well at, the box office as well. I'm not going to get into the numbers, that's not the idea. Numbers की कोई ज़रूरत नहीं है. But I really want to understand, where are you today as an actor? Would you still be open to doing TV shows? Are you like, I understand you've kind of submitted to the process, right? But उस submit में एक चीज होती है हाँ ना बोलने की. Yeah, इस moment पे, as I speak at this very moment, no to television and not for any other reason. मुझे ऐसा लगा कि बहुत साल कर लिया, आर्ट वहाँ पे ग्रो नहीं हो रही थी, आर्ट सैचुरेट हो रही है. और क्योंकि हम बहुत क्वांटिटेटिव मीडियम में हैं, ऐसा नहीं है कि टीवी में काम करना अच्छा नहीं है, बुरा है, ये है वो है, बट आई थिंक द मीडियम इटसेल्फ इज़ वेरी क्वांटिटेटिव. जब हम काम कर रहे थे तो मंडे टू थर्सडे शोज आते थे, अब मंडे टू संडे आते हैं हाफ एन आवर 1 आवर. तो इसका मतलब ये है यू शूटिंग राउंड द क्लॉक, यू शूटिंग 12, 13, 15 सीन्स अ डे, बैक टू बैक. तो ना आर्ट सैचुरेट हो जाती है. आर्ट को एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. तो मुझे लगता है वो एनवायरनमेंट जब मिलना बंद हो गया. तो लास्ट टीवी शो वाज इन 2021 व्हिच मी एंड परिधि डिड इट टुगेदर, चीकू के मम्मी ऑन स्टार. आई थिंक उस शो के दौरान व्हिच शो दैट शो वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता. This is during COVID. दिस इज 2021 जुलाई अगस्त. कोविड खत्म हो गया था, पोस्ट कोविड, जब हमने शो शुरू किया था. उससे पहले के 5 साल मैंने एक्टिंग ही छोड़ दी थी. ये बहुत कम लोगों को पता है, उसके बारे में शायद बाद में आएंगे. बट 2021 वो एक शो था जो आया, जिससे इनफैक्ट आई ऑल्सो, इट वॉज अ रीबर्थ एज एन आर्टिस्ट समहाउ. आई थिंक ईश्वर की देन, पता नहीं उस लम्हे में, उस शो के दौरान जो भी मेरे साथ हुआ, उसने रीबर्थ दिया. बट हैविंग सेड दैट, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा उस तरह का महसूसियत हुई कि जब शो ख़त्म हुआ, ऐसे मेरे अंदर से कुछ आवाज़ है जिसने कहा, हिमांशु मे बी दिस मस्ट बी योर लास्ट टेलीविजन शो. बस ये आखिरी तुम्हारा ये था, ये कोई सर्कल था, तुमने पूरा करना था, कर लिया, अब तुम आगे अलग तरीके की जर्नी में बढ़ोगे. और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि पहले जर्नी थी हीरो बनने की, स्टार बनने की. फिर एक दौरान जब बहुत सारा एक्टिंग छोड़ गई, जब दोबारा शुरू हुई, तो सारी चीज़ों को ड्रॉप करके यार रियलाइज़ किया, I have been very selfish in using art to fulfill my own desires. Then I decided, no, I think I've done this. It's not something that I want to do anymore. I will let art use me to serve the purpose where it wants to take me. So that's what happened in 2021. And then I decided कि यार वो ना, फिर अगर art मुझे यूज़ करना चाहती है, मुझे एक मीडियम बनाना चाहती है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे ऐसे त्याग करने पड़ेंगे और बहुत सारे ऐसे करेजियस डिसीजन लेने पड़ेंगे. हो सकता है काम हो ना हो, पैसे हो ना हो, बट ये जर्नी अब जहाँ आर्ट लेके जाएगी, इट्स लाइक उद्देश्य कला को समर्पण करना है. और इसके साथ एक लाइन जो मैं ख़ुद को कहता हूँ कि अभी बड़ी लाइन है बट बोल देता हूँ, ऐसे फकीर बन के रहे. एक्चुअली ऐसा होता है, फकीर. And if you guys want to listen to more of these one-liners, you can always go to his Instagram page and YouTube as well. Okay. Because I've seen so many of them, so many kind of add up for me, and I say this with all humility, because there's only a take from there, so that's great. TV, I think you've kind of. हाँ, so TV, coming to the conversation, तो TV अभी at this very moment, कल का मुझे पता नहीं है कौन सी मजबूरी, कौन सी चीज़ें, क्या लाइफ के सारे तख्ते पलट जाएं, and I may have to go back, and I will go back, because I think इस लम्हे तक तो ऐसी कोई विश नहीं है. इस लम्हे तक ये है कि जैसे जैसे वो थिएटर है. अब एक और चीज़ बड़ी अच्छी हुई है ना, कि अब एक्टिंग करने में मज़ा आता है. ये नहीं कि वो TV है, वो वेब है, वो फिल्म है. तो हम जब रुपेश सर के पास भी सीन करते हैं, आई वाज टॉकिंग टू समवन, सिमरन से मैं बात कर रहा था, जो हम लोग सीन परसों ख़त्म करके आए. ऐसे सिमरन, परसों मैंने सीन किया फॉर द नेटफ्लिक्स शो विद रजत सर. तो वो सीन जब मैं कर रहा हूँ, और ये सीन जो मैं अपने को पार्टनर के साथ रुपेश सर की सीन वर्कशॉप में कर रहा हूँ विद सूरज, मेरे लिए दोनों सीन एक बराबर हैं. मेरे लिए ये फ़र्क नहीं है कि नेटफ्लिक्स का बहुत बड़ा शो है तो इसलिए मेरे को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना है या यहाँ पे कुछ कम करना है, क्योंकि बहुत छोटे एनवायरनमेंट में एक सीन शूट हो रहा है जो रियाज़ के लिए सिर्फ ये मैंने वीरेंद्र सहवाग से सीखी थी. मुझे याद है एक बात कि यार क्रिकेट खेलने में मज़ा आना चाहिए, फिर अब टेनिस बॉल से खेलो, कॉक बॉल से खेलो, टेस्ट मैच खेलो, वनडे खेलो. तो आई थिंक उस सतह तक आई एम ट्राइंग टू मूव कि यार वो मज़ा आना चाहिए बस. 100%.
And I think that's the purpose of it. That's the purpose. मतलब यार at the end of the day, गौरव, also I realize ना, जितना इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ समझा, शास्त्र भी पढ़े, गीता भी पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें, जितना सब कुछ लिखा, पढ़ा, पॉडकास्ट किया, बहुत सारे लोगों से बातें की, सब चीज़ें की, at the end of the day ना, I think समझ में जितना भी आप समझने की कोशिश करो, सब चीज़ें हो जाती हैं, बट दो ही चीज़ें रहती हैं. एक तो आपका उस लम्हे में रहना, जिस लम्हे में आप हो जीवन के, विच इज़ लिविंग द मोमेंट, एंड सेकेंड आप सुकून में रहो और आनंद में रहो अपना. बाकी सारी चीज़ें होती रहती हैं, होती ही रहेंगी. Which are two very integral components of acting as well. Yeah, live in the moment and be Moment में joyful रहना and being और जो joyful आप कर रहे और हो मज़े करना उसके साथ. enjoy करना. I mean, most of us actors have come to this city to pursue our dreams as an actor, or you know, as whatever form of art we want to pursue. The idea was that we enjoyed doing what you were doing, right? Enjoy doing it यार, मज़ा आना चाहिए, क्योंकि अगर मज़ा नहीं आ रहा ना तो कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे. जहाँ पे जो मर्जी सोच लो, क्योंकि क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो अलग चीज़ है. लेकिन अगर उस दौरान आप मज़े नहीं कर रहे ना, तो क्या ना, जब तक इस लम्हे में मज़ा नहीं है ना, तब तक वो ट्रांसेंड नहीं करता इस कैमरे पे. If I'm not so present in the moment with you and if I'm not enjoying this moment, इसलिए कहते हैं जब सेट पे बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है, कॉमराडरी हो जाती है को आर्टिस्ट की, तो कैसे कैमरे पे ट्रांसेंड हो जाती है सारी चीज़ें, एंड द कैमरा स्टार्ट्स कैचिंग एवरीथिंग, एवरी एफिनिटी, अफेक्शन ऑफ एवरी को आर्टिस्ट विद ईच अदर. वो दिख जाता है क्योंकि आप साथ में जुड़ गए और मज़े ले रहे हो. जब आप मज़े ले रहे हो तो हर कोई मज़े ले रहा है. जब आप मज़े नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, तो फिर लोगों को लगता है देखने के लिए देख लिया. Which is where it kind of becomes performative. हाँ, which is becomes performative, yes. I just want to also, you know, pick out something interesting that you said, you know, कि अब अभी फिलहाल मुझे टीवी नहीं करना, ऐसा मुझे लगता है, right? At the moment, yeah. Now, you know, we were also talking about कि पहले करके देख लो. हाँ, बिना उसके नहीं Right, होता. and you've done fair amount of TV. मैंने 12 साल किया. 12 साल करके is when he's made that choice. Now, why I bring this up is because a lot of actors, and it's completely okay to have your choices as to, you know, What you I want to also do feel there's a lot of learning that lies in TV. yeah. Now, I'm not encouraging anyone to do it or not do it. But at the same time, here's a man sitting who's done TV for 12 years, and after which he's decided, okay, maybe right now I don't want to do it anymore. Right? I just feel there's a lot of shadow cast on TV, and maybe rightly so, wrongly so, whatever. But the fact of the matter is, he's done it. Yeah. He's seen it all, and then he's made his And choice. also grown from it. What Also happens grown. is because अब भी मतलब ये जो शूटिंग चल रही थी हमारी, तो फर्स्ट डे ऑफ द सीक्वेंस था विद कृति. वी वर शूटिंग समथिंग कृति खरबंदा के साथ. तो करण सर आए और उन्होंने ना कुछ सीन में था हमारा, वो सीन की लाइंस ना लास्ट मिनट पे चेंज हो गई. एंड उनको लग रहा था कि कैसे होगा, अब लास्ट मिनट पे चेंज हो गए, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में डायलॉग्स थे इनिशियली. फिर जब सेट पे आया तो मैंने पढ़ा नहीं था, somebody had mailed me, और वो मेल मैंने चेक नहीं किया था. तो मॉर्निंग में तो मैं अलग स्क्रिप्ट पढ़ा, वो अलग स्क्रिप्ट पढ़े और मेरे साथ रीडिंग कर रहे हैं. तो कह रहे ये क्या है, इससे यही मुझे मिला. कह रहे नहीं ये तो उनको लगा ये कैसे होगा, यू नो अभी 15 मिनट बाद हमें शॉट देना है. बट यू नो व्हाट, थैंक यू टू द मीडियम विच इज़ कॉल्ड टेलीविजन, बिकॉज हम 5 मिनट में सब चीज़ें कर सकते हैं. That is, it's, अगर नहीं हो सकता उसके बिना, अगर कोई और एक्टर होगा जिसने amazing. नहीं किया होगा ना, वो परेशान हो जाएगा. एंड यू नो एवरीवन दे विल बी पैरानोया ऑन सेट. it is so amazing. I've seen actors. Like I was doing a workshop जो रुपेश सर की मैंने सबसे पहले करी थी. वहाँ पे अलीफिया, she can just read the script and she's done. I've done some amount of TV, but I've seen people, they'll just, you know, because a lot of times you get the script like right on the set, you know, right before the shot as well, and you're just supposed to see, oh, this is what the scene is. 3-3, 4-4 पेज के लंबे डायलॉग्स बोलते हैं अक्सर, और करेक्ट मोनोलॉग्स हैं बड़े बड़े. मोनोलॉग्स नहीं, और चली जा रही है बाहर. So you basically switch your वो TV बटन ऑन करा, बस और क्या. Let's go. The moment you, and also the training has also been like this. कि ये लाइंस ना फट से याद हो जाते हैं, मैं देखते ही समझ, क्योंकि हम लाइंस रटते नहीं हैं. हम लाइंस का बेसिक कोर समझते हैं और कोर के आसपास उसकी बेसिक एसेंस, उसका सबटेक्स्ट, और उसके बाद उसको अपना बना के बोलते हैं. क्योंकि टेलीविजन ना वो बॉस मीडियम है. टेलीविजन में 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 28 मिनट का मतलब ये होता है कि एक सीन है, उस सीन हम 20 सीन नहीं कर सकते दिन में, क्योंकि लाइटिंग है, कैमरा है, 50 चीज़. हम 1 या 5 सीन्स करेंगे, तो एक सीन को लंबा खींच देते हैं. लंबा खींचेंगे तो फुटेज ज़्यादा निकलेगा. तो हमें एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करना, एक्स्ट्रा लाइंस यू नो कैसे यू नो इम्प्रोवाइज करना, वो सारी चीज़ें आती हैं. हम उसको अपना बनाना जानते हैं, टेलीविजन सिखा देता है. That's We have very done true. that. Very So it true. helps I everything. do tell a lot of people to do television. सब चीज़ें करनी चाहिए सब यार. चीज़ करनी हाँ, चाहिए. बिना करे ना नहीं समझ में आता. करने के बाद, और ऑल्सो इट एड समथिंग टू यू.
वो कुछ ऐड ही कर रहा है ना मेरे अंदर कि मैं 1 सेकंड के अंदर सब चीज़ें पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लाइन से याद हो जाते हैं, आई कैन डिलीवर। 100%। आई वांट टू कम बैक टू द ट्रेनिंग, पर मुझे ये बताओ एक्टिंग आपने छोड़ी क्यों और वापस पकड़ी क्यों? बट सी आई एम नॉट पुशिंग यू टू डाइव डीपर इनटू इट। नहीं, इफ यू टेल मी इन अ मैं सिंगल तो लाइन, बता दूंगा यार, मुझे कोई टेंशन नहीं। एक्टिंग एक्चुअली छोड़ी 2015 में नच बली हुआ था, विच वी वन। 2015 में खतरों के खिलाड़ी हुआ, विच आई वाज आल्सो पार्टिसिपेंट ऑफ। उसके बाद 2016 में मैंने एक कोई शो था जी का करने वाला था, फिर वो ना अचानक से शेल्फ हो गया था, एंड इट वाज अ डीयर शो। I know, I saw this bit as well. एक आपका आर्मी हाँ, correct, yeah, yes, I yes. wanted to talk about this हाँ, also. so basically हुआ क्या था उस मोमेंट पे, ये 2016 की बात है, तो मैं वजह तुम हो कर चुका था टी सीरीज की, और वजह तुम हो के बाद की बात है, तो एक ऐसे जी का कुछ पायलट एपिसोड था 2-2.5 घंटे का, और वो कहानी थी रविंद्र कौशिक के ऊपर, जो इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान आर्मी ऐसा था, जिसके ऊपर एक था टाइगर बनी सबसे पहले जी। I still remember I was in my living room and I got a call from the producer saying यार वो शो ना शेल्फ कर रहे हैं because the DOP का काम और डायरेक्टर का काम पसंद नहीं आया चैनल को, तो we will not be airing it, and it was disheartening because आपने इतनी मेहनत की है, सब चीज़ें की हैं। तो आई रिमेंबर माई वाइफ अमू, शी केम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैंने कहा बेबी वो शो ना हम शेल्फ कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर शेल्फ कर रहे हैं। सो शी फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट, एंड आई रिमेंबर शी वॉक्ड इनटू द बेडरूम एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड आई वेंट अप टू हर, आई सेड क्या हुआ? तो शी सेड नहीं मुझे ना बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, तुम इतनी मेहनत करते हो सब चीज़ें, बट समथिंग इज़ अ मिस। तो ऐसे ठीक है यार, इतने सारा काम किया है, एक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। शी सेड नहीं, ये सब तुम कर रहे हो करते रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ और भी है जो मैंने देखा है पिछले 10-12-15 सालों में। यू शुड डू समथिंग, यू शुड डू सम सेशंस, पता नहीं क्या करोगे कैसे करोगे, बट डू सम सेशंस, गो एंड मीट पीपल एंड डू समथिंग लाइक दिस। तो बस वहीं से वो शुरुआत हुई। देन भी पता तो था नहीं क्या करना है कैसे करना है, देन वी स्टार्टेड शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव, एंड दैट्स वेयर वी शेयर वी ग्रो स्टार्टेड, व्हिच इज आल्सो योर YouTube चैनल। या वो सारी चीज़ें वहीं से शुरू हुई। 5 साल फिर मैंने 2016, 17, 18, 19, 20, 21 जब तक मैंने शो नहीं किया तब तक मैंने पूरा का पूरे अपनी लाइफ, इनफैक्ट शो के दौरान भी मैं ब्रेक के अंदर, शूट रुकी हुई है और मैं कह रहा हूँ कि मैं टॉक शो कर रहा हूँ ऑनलाइन लोगों के साथ, शूट रोक के लंच ब्रेक के अंदर, समटाइम्स एंड आई एवरीडे वीडियोस जनरेशन, 3 वीडियोस, 4 वीडियोस, वर्ड डिलीजेंट, more than 2000 videos. It's on my face. I know. Because I was like, okay, let me go see what he was doing. बहुत सारे वीडियोस I'm starting off with a man who's done so many of these interviews with so many of these people who are artists and celebrities and actors in their capacity, and you were at it. Yeah, I was at it. It was doing well. Yeah, it was doing well. And बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे शुरू करने के लिए। फिर छोड़ा क्यों? यार एक्चुअली पता क्या हुआ, 2016 में जब ये शुरुआत हुई, तो सबसे पहले तो ये था यार कि एक्टिंग क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन में करते हैं, आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ पपेट, क्योंकि टेलीविजन एक पपेट भी बना देता है आपको कि आपको जो कहा जाता है वो करना है। प्रोड्यूसर्स आते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, सभी कहते हैं कर दो ना यार हिमांशु, सीन कर दो यार, टेलीकास्ट जाना है। आई थिंक इट स्टार्ट्स टू पुट अपॉन यू एंड योर क्रिएटिविटी, एंड आई वाज फीलिंग स्लाइटली आई वोंट से क्लॉस्ट्रोफोबिक इज अ बिग वर्ड, थोड़ा सा आपको ना महसूस होना शुरू हो जाता है कि नहीं यार कुछ आपके अंदर जो है वो बाहर नहीं निकल के आ रहा है, बॉक्स्ड। हाँ, यू आर बॉक्स्ड अंडर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि हम ये शुरू करते हैं। जब अमू ने कहा, तो फिर जब पहला सेशन मैंने किया था, मुझे याद है किसी बैंक्वेट हॉल में किसी ने बुलाया था और 20-25 लोग थे वहाँ कॉर्पोरेट की, और वहाँ मैंने पहली बार जब बात की थी किसी से 1.5-2 घंटा, तो जब बात करके आया था तो आई कॉल्ड अमू एंड आई सेड बेबी आज ना जो मैं कर के आ रहा हूँ उसके आगे एक्टिंग मुझे बड़ी छोटी लग रही है, बिकॉज आई कुड फील दैट डायरेक्ट इम्पैक्ट व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल एंड आई कुड समहाउ मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ। एंड वो ना बड़ा कमाल की फीलिंग थी, बड़ी फुलफिलिंग सी फीलिंग थी। और वो फिर वो फीलिंग जब आपके अंदर उतर जाती है तो बाकी सारी चीज़ें परे हो जाती हैं। फिर इतनी फुलफिलमेंट महसूस हुई, देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी। lot of people started calling me in those years a motivational speaker, and आज भी बुलाते हैं लोग कि ये है वो है, बट मैंने कभी इस बात को ना हामी की है ना कभी कहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए इसका नाम वी शेयर वी ग्रो या शेयर एंड ग्रो था कि जो मेरे आत्मा में या जो मुझे महसूस हो रहा है, आई वुड जस्ट वांट टू शेयर इट, गुड बैड वर्स्ट अगली मुझे नहीं पता, जितना मैंने सीखा लाइफ से आई वुड जस्ट वांट टू गिव इट बैक इन सम फॉर्म, एंड दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड।
फिर मीटिंग पीपल, टॉकिंग टू पीपल। फिर ये भी था यार कि आई डेंट लाइक मेकिंग दिस वीडियोज़ जहाँ खुद खड़े होकर आप बोलते रहो, यू नो, एंड काइंड ऑफ ज्ञान एंड एवरीथिंग जो भी कहते हैं उसको। देन आई डिसाइडेड कि क्या करेंगे, तो दोस्तों ने सजेस्ट किया कि टॉक शो शुरू करते हैं, एंड टॉक शो के अंदर आप भी बात करोगे, वो भी बात करेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरैक्टिव। एंड देन ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ जेस्ट टू नो कि कौन क्या सोचता है, किसकी क्या लाइफ के बारे में क्या सोच है, एंड आई थिंक द जर्नी ऑफ लाइफ, मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ, वेरी लेस एज एन आर्टिस्ट। सारे टॉक शो में आर्ट की बात बहुत कम होगी, लाइफ के बारे में सारी बातें होंगी, एंड समथिंग विच आई कैन कनेक्ट टू। एंड ऑल माई फ्रेंड्स, दे स्टिल आर, दे वर वेरी काइंड एंड ग्रेशियस, दे ऑल केम, यूज्ड टू शूट नंबर ऑफ एपिसोड्स, कभी ऑडियंस के साथ, नॉट ऑडियंस, 60-70 एपिसोड, ऑनलाइन ऑफलाइन, पता नहीं क्या क्या किया हम लोगों ने। तो वो बड़ा कमाल का एक जर्नी था, उसने बहुत मुझे हेल्प की, बहुत ग्रो किया। कुछ जवाब जब ढूंढ रहे होते हो लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में, आर्ट के बारे में, वो सारे आपके जहन में छप गए, एंड दैट्स व्हाट द जर्नी स्टार्टेड। फिर एक टाइम के बाद क्योंकि मैं बहुत एक्टिंग नहीं कर रहा था, जाहिर सी बात है फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर सारी चीज़ों के तामझाम पे पैसे लगते हैं, और मैं थोड़ा सा पांच कैमरा सेटअप पे शूट कर रहे हैं। I saw it was actually हम लोग लाविश शूट कर रहे हैं, और क्योंकि मैं तो वो फ्लैम्बॉयंस ना वो ऐसे ही आता है, वो फिल्म मेकर वाला भी है। स्टूडियो भी करा हुआ आपने, स्टूडियोज पता नहीं क्या किया, कॉलेजेस, स्टूडियोज, ऑडियंसेस, आई डोंट इवन नो। ऑडियंस के साथ 500 की ऑडियंस के साथ हमने टॉक शो किया। मैंने Yes sir, this is very true. शांतनु महेश्वरी के साथ, ठाकुर कॉलेज के अंदर 1000 लोगों के साथ हम लोगों ने किया, करण भाई के साथ भी किया, एक्टिंग स्टूडेंट्स के साथ कि चलो उनको कोई फायदा होगा, पता नहीं है क्या क्या किया। मतलब वो जर्नी ऐसी थी, एंड आई वाज सो डीप इनटू इट। फिर वो पॉडकास्ट भी थे, टॉक शोज भी थे, उसके साथ ऑडियो, जो भी मैं लाइफ के बारे में सोचता था, ऑडियोज में भी, एनिमेशन में भी, राइटिंग में भी, वीडियोस रोज जनरेट हो रहे हैं। सो वी हैव द होल टीम ऑफ शेयर एंड ग्रो। दिस इज वेयर एक्टिंग स्टॉप। हाँ, एक्टिंग तो 2016 जैसे ही शेयर एंड ग्रो शुरू हुआ, जैसे मुझे लगा एक्टिंग नहीं यार, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ये बहुत फुलफिलिंग है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक सिर्फ यही चल रहा था। बीच में आपने राह पकड़ ली। आई थिंक मैं पूरा लाइफ ही ट्रैजेक्टरी अलग, उस समय बस जो काम आया मैंने कर लिया। टेलीविजन थोड़ा बहुत आ रहा था, आई डिडंट फील लाइक डूइंग इट। शेरशाह आई और हम 2 फिल्में आई, वो भी ईश्वर की कृपा है, पता नहीं उसने जागृत रखा और वो आ गई और मैंने कर ली। मैंने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए इतनी ज़्यादा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। वापस एंट्री कैसे हुई? वापस एंट्री 2021 व्हेन चीकू की मम्मी दूर की, दैट शो ऑन स्टार प्लस हैपेंड। पता नहीं यार उस शो में क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता। आई थिंक आई हैव अ फीलिंग इट वाज अ रीबर्थ, और मे बी शायद द यूनिवर्स wanted me to come back to where I belong. It was a detour, and the detour was basically to understand myself, life, this whole alignment of the universe, so that मैं वो सारी चीज़ें हम सीख के यहाँ पे इस्तेमाल करके आगे बढ़ाऊँ चीज़ों को। Now more to offer. Now more to offer, yes. Because अब अपनी क्योंकि अगर ये 5 साल की जर्नी या 6 साल की नहीं होती तो मेरी अपनी डिज़ायर्स नहीं छूटती। वो जो डिज़ायर्स थी ना, शाहरुख खान बनने की या ये बनने की या वो बनने की, जो भी आपकी डिज़ायर्स होती हैं, वो डिज़ायर्स छूटी तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। जब ये समझ में आई तो प्योरिटी आई बीइंग के अंदर। जब प्योरिटी आई बीइंग में तो मैजिक आता है। तो ऐसा कुछ। बट देन यू ऑल्सो, इस जर्नी की वजह से आई बिकेम द ऑथेंटिक हु आई एम, क्योंकि सारी चीज़ें टूटनी थी। और इतने सारे सेशंस आज भी हम लोग करते हैं, वेबिनार्स, पता नहीं कितना कुछ किया, 500 600 वेबिनार्स किए मैंने, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों को बुलाना, लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अभी भी चलता रहता है बीच में। हाँ, स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। Yes, and I remember लॉकडाउन के दौरान भी मैंने आपकी काफी सारी रील्स देखी हैं, because they would pop up on लॉकडाउन के दौरान। तो हम लोग सुबह एक सेशन, शाम को एक सेशन, और 2-2 2.5 घंटे के सेशंस कर रहे हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स, यू नो। आपने कहा कि टूटना बड़ा जरूरी है। आई एम जस्ट पुटिंग इट इन सिंगल लाइन, डू यू मीन अहम टूटना बहुत जरूरी है? इज दैट वन एडवाइस दैट यू गिव? एडवाइस तो क्या मैं बस वही बता सकता, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक आपका मैं नहीं टूटेगा या छूटेगा, तब तक बहुत सारी चीज़ें ना अंदर से जागृत नहीं होती। और वो ना मैं बहुत खतरनाक है, लाइक यू नो, 2 आर्टिस्ट इन अ फ्रेम, दे आर सर्विंग अ स्टोरी। प्रॉब्लम क्या होता है, जब एक आर्टिस्ट का पर्सनल एम्बिशन टू शाइन आ जाता ना, तो गड़बड़ हो जाता है। 100%। तो ये जो पर्सनल एम्बिशन है ना टू शाइन, जो हमें सिखाया गया, बिकॉज वी लिव इन अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड, इसको ड्रॉप करना पड़ता है। और जब आप ड्रॉप करते हो तब ये 2 आर्टिस्ट सिंक में आते हैं, वेयर द मैजिक इज। बट इसके लिए समझने के लिए ना, अपने आय का मतलब वो अहम ही है, वो पर्सनल एम्बिशन है कि यार जब हम छोड़ते हैं और उसको साइड में करते हैं, तो आप दोनों मिलकर ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जो बहुत कमाल का है।
और सच वही है बस. That's completely true. I completely kind of can understand where you're coming from, you know, an actor's perspective. कि आपका And also in relationship. and relation 100%. आई का टूटना जरूरी है, तभी आप वी जब में आपका जाओगे. अहम टूटेगा तो आपकी जिंदगी ही बेहतर होने लग जाती एंड है. देन द कनेक्शन हैपेंस मोर. वी भी तो तभी बनता है. यस, अगर एक्टर का जो मैं है, एक्टर का अहम है, वो कैरेक्टर के अहम में, कैरेक्टर का अपना अहम हो सकता है, पर उसमें एक्टर का अहम नहीं हो सकता. राइट? इज दैट व्हाट यू सेइंग? या मुझे पता नहीं कैरेक्टर का अहम का तो मुझे ज्यादा पता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एवरी कैरेक्टर आल्सो हैज. यानी मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि अभी तक मैं उस सतह पे नहीं पहुंचा एज एन आर्टिस्ट कि मैंने बहुत डीपली कुछ ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, मतलब जहाँ पे मेरा अपना पूरा सब कुछ छूट गया हो. मुझे लगता है मेरा अभी भी मेरा हिस्सा आ ही रहा है जो भी मैं परफॉर्म कर रहा हूं 100%. उस मामले में. 100%. That is Yeah, not what yeah. I'm saying. I'm saying कि अपना पर्सनल मोटिवेशन छोड़ के कैरेक्टर का मोटिवेशन लेना वो बहुत फिर भी पकड़ सकते हो आप, बट Right. अपना पर्सनल मोटिवेशन तो हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता. हाँ, उसका क्या करोगे? वो तो Of फिर course, आप वो yourself is involved in the character for sure. because then it will become an obstacle in your path. 100%. Your eye is an obstacle, and also I think कि मैंने सर का मैं कुछ सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो पानी के बोल की तरह पात्र होते हैं ना, हम लोग कलाकार को पात्र कहा जाता है कि वो पात्र है कि मतलब जो भी पानी आप जैसे भी डालते हो, like Bruce Lee also said, you know, be fluid like water, something take the shape of the take the vessel. shape of the vessel. Fair enough. Content creation और acting. Acting का पलड़ा भारी चल रहा है. एक चीज मैं I just want to say I want to know वो share and grow initiative so is. मैं ये मेरा अपना मानना है, सबकी अपनी मेरी सोच है. जितने भी साल मैंने किया, जितने भी वीडियोस आए हैं, ऑडियोज हैं भर भर के, अभी भी होंगे कुछ 1,500 वीडियोस और सेमिनार्स और ये वो, मैं इसे कंटेंट ना कहता हूँ ना मानता हूँ. उसका एक रीज़न ये है कि मेरी कोई जर्नी थी नहीं कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है या यूट्यूबर बनना है या इससे पैसा कमाना है या ये होना है. हमारा तो यूट्यूब भी नॉन मोनेटाइज्ड है शुरू से. इंस्टाग्राम Money brings in corruption, is that it? हाँ वो भी था, और वो भी बहुत ज़्यादा था. मुझे था यार ये ना बड़ी बहुत एक ही चीज़ है मेरी लाइफ में जो बड़ी प्योर बीइंग से आती है, जिससे मुझे कुछ चाहिए नहीं. अगर यहाँ से भी कुछ चाहिए तो फिर मैं डिज़ायर के चक्कर में फंस जाता हूँ. एक जगह है जहाँ एक्टिंग है, जहाँ से पैसे आ जाते हैं, मेरा घर चल जाता है, सब चीज़ें हो जाती है, बस इतना बहुत है. मेरी इतनी कोई ऐसी बहुत बड़ी डिज़ायर्स उस तरह की नहीं है. बट एक तो चीज़ हो कम से कम जीवन की जिसमें आपका कोई अल्टीरियर मोटिव ना हो. So I want to keep that, you know, as pure as possible. So I feel money somehow, for me, maybe not for anybody else, मेरे लिए वो करप्ट कर देता है. बट इसलिए मैंने उसको बहुत हद तक सब चीज़ें नॉन मोनेटाइज रखी हुई हैं. एंड और क्या कह रहा था मैं भूल गया, किस बारे में बात कर रहे थे. हाँ, कंटेंट क्रिएशन. मैं इसलिए कंटेंट क्रिएशन नहीं कहता क्योंकि मैंने ये किसी के लिए किया नहीं. ये थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है खुद को भी. जब कर रहा था तब इस बात का एहसास हुआ कि यार हिमांशु तो क्यों कर रहा है ये. रोज़ 7 बजे उठ के वीडियोस जाएगा, 7 बजे शॉप से वो वीडियो जाएगा, शाम को 7 बजे वीडियो जाएगा, दोपहर को वीडियो जाएगा, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, एडिट चल रहे हैं, कंटिन्यूस बैक टू बैक टीम्स हैं, सब चीज़ें हो रही हैं. क्यों? इसका जवाब ड्यूरिंग द प्रोसेस मिला कि यार ये ना एक्चुअली किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या किसी को क्या दूंगा. आई थिंक इट्स द वे आई एम एम्प्टिंग माई सेल्फ. जो सारी चीज़ें मैंने ग्रहण की हैं, बस मैं खुद को खाली कर रहा हूँ. जब मैं खुद को खाली करता हूँ तो मैं और ग्रहण भी कर सकता हूँ. इट्स अ वेरी सेल्फिश जर्नी. तो जो अगर कोई कुछ कह रहा है कि मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ तो शायद मैं इस बात को ना मानूं. मुझे लगता है ये आप अपने लिए करते हो. मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो वीडियो बना के. एंड ऑब्वियसली एक और चीज़ है उसके साथ अप्रिसिएशन भी आती है. ये मुझे बाद में समझ में आया कि ये उसका चक्र भी है. फिर धीरे धीरे फिर उसको भी साइड में करना शुरू किया. It is all about validation. तो सब बंद कर दिया 2-2.5 साल पहले. जैसे जैसे क्या होता है ना, आप भी धीरे धीरे समझते हो योर लाइफ इज़ वर्क इन प्रोग्रेस. तो धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना कंटेंट क्रिएशन का कुछ वो चाहिए, ना इन्फ्लुएंसर बनना है, ना इससे पैसा कमाने की सोचता हूँ. बस इतना है कि एक चीज़ आती है एक्टिंग, इससे काम हो रहा है, इससे हो जाएगा. ईश्वर ने मुझे लगता है काम पैसा मिल जाएगा, गाड़ी चल जाएगी लाइफ की. This is a man who's made a lot of money in life because he told me. अब किससे बताऊँ ना, गाड़ी वाला बता दो फटाफट. हाँ, 2012 में गाड़ी खरीदी थी ऑडी, which costed 40-45 lakhs. कैसे खरीदी ये बताओ. मतलब इट वाज, हम बात कर रहे थे उस दिन. सो आई वाज डूइंग अ शो कॉल्ड भागो वाली एंड उससे काफ़ी सारे पैसे आ गए थे. एंड रात को 11-12 बजे का टाइम था. वी हैड अ स्विफ्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच अमू हैड बॉट इट. और ऐसे ही आई वाज वॉकिंग टुवर्ड्स दिस अंधेरी का जो ऑडी का शोरूम है, ऐसे वॉक कर रहे थे, मतलब ऐसे गाड़ी से पास ऑन कर रहे थे रात को 11-11:30 बजे. और सामने रेड कलर की गाड़ी दिख गई लेफ्ट हैंड साइड में. वो ऐसे चमका के रखते हैं कम थोड़े ना ऑडी वाले भी.
बस आई डोंट नो, वो उन्होंने, मैंने देखा एंड समथिंग हैपेंड टू मी एंड नेक्स्ट डे आई जस्ट गिव द डाउन पेमेंट एंड बॉट द कार. ये अगली सुबह गए, अभी he's just trying to be humble. He's gone the next morning. He's given 20 lakhs as down payment and got the car. Yeah, we did that. और फिर ये मुझे बता रहे थे कि पैसे सब कुछ नहीं है. But he's also said something very important. नहीं, मैं कमाल और हाँ, मैंने ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने कर लिया है ना, आप कर लो एक बारी, करने के बाद आपको महसूस होगी बहुत सारी चीज़ें कि दिस इज़ नॉट द आंसर व्हाट आई फील अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फुलफिल्ड महसूस करवाएंगी. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक तैश होती है. आप यू टॉकिंग अबाउट फ्लैम्बॉयंस, दिस इज फ्लैम्बॉयंस ओनली. ये अपनी ये दिल्ली वाला फ्लैम्बॉयंस है कि गए और जाके 20 लाख का चेक दिया और गाड़ी खरीद ली. यू नो, कुड हैव सेव्ड दैट मनी फॉर हाउस, कुड हैव सेव्ड दैट मनी फॉर एवरीथिंग एल्स. वो सब चीज़ें में आई बाद में, लेकिन ये फ्लैम्बॉयंस ही एक तरह से. तो ये आपकी प्रवृत्ति के ऊपर है, आप कैसे हो, क्या हो. बट या जो भी आप करना चाहते हो, आप एक बार ये कर लो, क्योंकि नहीं करते ना तो मुझे लगता है वो जब BMW बाजू से गुजरती है आपको लगता है आई वांट टू बी देयर. जब आप बैठ जाते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है, No, I really want to be there. मैं तो कह रहा हूँ एक बार ही कर लो. At least, एक बार ही करो, महसूस करो, सब चीजें कर लो. करने के बाद की जर्नी ना फिर ज्यादा प्रोफाउंड हो जाती है, वरना उससे पहले फिर कुछ अधूरा छूटा ही रहेगा हर बारी. 100%. I still feel my journey is profound. मैंने आपको अपनी भी एक फिलॉसफी दी थी कि आई स्टिल फील कि सतह भी उतनी जरूरी है जितनी गहराई जरूरी है, और उसके बीच की भी चीजें उतनी ही जरूरी है. I think हर चीज का अपना महत्व है. और भोगना भी तो जरूरी है. आप इस दुनिया में आए हो, आप कहो कि सारी चीजें हैं और मैं संत बन के बैठ जाऊंगा तो स्टुपिडिटी हो जाएगी. कलयुग में आप सत्युग की तरह नहीं जी सकते. आप जैसा हो, मतलब आप उसको भोग लो. मतलब कि जिस सहजता से जब चीज़ें आपके पास आती हैं आप उन्हें एम्ब्रेस करते हो, उतनी सहजता से जब वो जा रही है तो उन्हें छोड़ना भी ज़रूरी होता है. इट्स कॉल्ड लेट गो. एंड आई ऑल्सो रियलाइज्ड इट सम टाइम बैक. एक फिल्म आ रही है आमिर सर की, सितारे ज़मीन पर. सो आई टेस्टेड फॉर इट, एंड उनको पसंद आया. एंड आमिर सर के साथ 2-3 सीन्स थे, very interesting scenes towards the end, and they locked me and everything. Some negotiations were happening regarding money and it did not work out. And I remember a part of me wanted कि यार चले मानचो पैसे कम हैं, जो भी है whatever कर लेते हैं. And I still remember the person who had casted me for, he told me कि सर आप रहने दो, you know, ये ठीक नहीं है कुछ, you know, in the sense maybe they are just pulling you down unnecessarily regarding the जो भी उनका था. हर किसी के अपने budgets and everything. बट देन मुझे बस एक चीज़ समझ में आई. मैंने कहा देखो यार हिमांशु, सोचो ज़रा, इस इंसान ने तुम्हें बुलाया था, इसी ने टेस्ट लिया और यही कह रहा है कि छोड़ दो, तो छोड़ दो. बस इतना ही सिंपल है. अटको मत यहाँ पर. तो जिस सहजता से किसी ने आपको बुलाया, उतनी सहजता से अगर वो कह रहा है जाने तो जाने भी दो. हमें क्या होता है, हम जो आ रहा होता है उसको हाँ पकड़ लेते हैं और मुंह में अटक जाते हैं. तो बस ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए कि मैं अपने ऊपर मैंने अप्लाई किया कि हिमांशु जा रहा है तो जाने दो. उसके पीछे अब परेशान मत होना कि जैसे मैं 1 घंटा 2 घंटा आप सोचते रहते हो, उससे जाने दो. जब मुंह होगा तो दर्द भी होगा. हाँ, वो ऐसी तो जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो अचानक से आ भी जाती हैं. हमारे हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, अचानक से कॉल आता है. आई वाज गोइंग टू लोनावला विद माय मॉम एंड माय ब्रदर एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड हिमांशु वी वांट टू टेस्ट राइट नाउ विद इन एन आवर. I had to postpone that trip by a couple of hours and I had to. इसलिए I like the unpredictability of life. Right. हो रहा होने दो. 100%. I want to talk about your journey also as a producer. You were working on a project which is out also now. Yeah, it's called Gali Guliyan. Yeah. Gali Guliyan on Amazon. Amazon Prime. And I've seen that film. It's a beautiful film. Thank you. Indie project. Yeah, indie project. Yeah. Can we talk about it? Of course we can. We lost a lot of money on that. We lost a lot of money on that. Tell me about that. Tell me about that. यार वो थोड़ी सी हमारी ही गलती थी. I think we should have sold the film as a Netflix original or an Amazon original. Back in 2017 when we shot the film, Dipesh is the director of the film. He's also the producer along with Shuchi and Lena. She is a German producer and I was designated as an associate producer of the film and handling the India stuff. And Manoj Bajpayee, नीरज कबीर, शाहाना गोस्वामी, रणवीर सब उस फिल्म के. आज भी मनोज जी बड़ी तारीफें करते हैं उस फिल्म के लिए. उनकी one of the best performances. He says that we are very kind and grateful to him and he's been wonderful man also. So खैर हुआ बस ये कि 2017 में वो फिल्म सेटअप हुई. 2018 7 सितंबर को रिलीज हुई when लैला मजनू was released and Paltan was released alongside. But 31st अगस्त को स्त्री रिलीज हुई थी. तो जाहिर सी बात है 31 अगस्त को स्त्री रिलीज हुई. 7 को हमारे शोज़ थे, वो सारे शोज़ कैंसिल हो गए. 6-7 शोज़ ऑफर थे, वो 3-4 रह गए. फिर फ्राइडे सैटरडे तक आते आते और कम हो गए, संडे तक आते आते और कम हो गए. एंड ऑब्वियसली फिल्म वी डिडंट इवन कलेक्टेड वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट. How much did you lose on it? हाँ,
I think we lost around 4.5 CR on that because independently produced, marketing, सब चीज़ें and all that. तो वो काफ़ी it was a jolt to everyone. It's a lot of and also दिपेश ने बहुत प्रेम से, बहुत दिल से, because he's a DG award winner, Directors Guild of America award winner from, and worked in, he was an alumni of US University of Southern California. इस फिल्म का सारा post production was in Skywalker Studios, जहाँ पे अवतार वगैरह का post production हुआ है. All the alumni of USC, all the people, Oscar nominee people have worked on the film, VFX and everything. वो सारी चीज़ें थी. मामी में we got the He's second worked runner. a lot with Manoj ji as well, right? Who? Deepak. No, Dipesh. No. Only one film. Only one. उसके बाद now he's a monk. He's left everything. Oh, he's left everything. He's a monk. Wow. He's a monk. He left after the film after some time. He's into meditation and he's a monk now. He's left everything. तो खैर that's a different thing. तो वो जब सब चीज़ें छूटी, film did not work well, and also film was gone. We've got the second runner-up in Mami also, opening festival in यहाँ पे London also and LA also. बहुत जगह travel भी किया, साउथ कोरिया वगैरह सब जगह. तो सब चीज़ें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उम्मीद नहीं थी. लेकिन मुझे याद है एक टाइम पे राकेश सर वो सपोज टू प्रेजेंट द फिल्म, फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई. बट ही सेड इट, आई रिमेंबर व्हेन वी वर सिटिंग इन हिज ऑफिस, एंड ही सेड कि हिमांशु एंड दिपेश इसको ना नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बेच देते हैं, बिकॉज इट वाज अ सॉन्गलेस फिल्म, डार्क साइकोलॉजिकल ड्रामा. बट वहाँ पे चूक हो गई. अगर बेच देते तो शायद वी कुड हैव रिकवर्ड मनी एंड वी कुड हैव मेड अदर फिल्म्स एंड एवरीथिंग. थिएट्रिकल रिलीज उस समय मार्केट ही नहीं थी उस तरह की. True. हाँ, you need a big setup, big star, exhibitors, distributors. Right. It's a big thing altogether. Right. And also Somehow we could Manoj not. sir wasn't the brand that he is today. Manoj ji became a huge brand post Rajan DK's family man and everything. He had done a body of work which is profound, but I think हमारा ना बड़ा star based system था उस समय. अब धीरे धीरे मुझे लगता है वो लाइन्स थोड़ी ब्लर हो रही हैं. People are looking at the content. I'm talking about 2018. 6 साल हो गए इस बात. Which is not too long ago also. But the advent of OTT and COVID and all those things, and of course Manoj ji grew phenomenally. Now he's doing Banda, he's doing Bhaiya Ji with Apoorv, again a good friend And of he's mine. still doing indie He's doing films. phenomenal, yeah, which is really, really nice. Yeah. I think the clarity that man has is very. And wonderful man. उनके साथ बहुत कुछ सीखा लाइफ के बारे में. बहुत humble है. I think humility. कुछ लोगों से humility सीखी. आदित्य सर, आदित्य वो वाला फिर एक बार किस्सा सुना दो. I don't want to hunt for views on any star's name or anything, but it was just a very good learning experience for me, which is why I'd love for you to share it with the audience as well. जहाँ आप होटल में थे मनोज जी के साथ. Oh yeah, by God यार क्या इंसान. उससे पहले की कहानी मत बताना. हाँ, उससे पहले की कहानी. So basically हम लोग दुबई में थे, पाम जुमेरा में, one of the 7-star hotels we were there, and उनका बड़ा अच्छा स्वीट हम लोगों ने बुक किया था. बिग स्पेस. और हम लोग वेट कर रहे थे किसी न्यूज़पेपर्स जो पब्लिकेशन का PR चल रहा था, फिल्म का प्रमोशन चल रहा था. वी वर वेटिंग फॉर सम न्यूज़पेपर आर्टिकल पीपल टू कम एंड टेक हिज इंटरव्यू. शाम के 4-5 बजे का टाइम था. मैं मनोज जी ऐसे बैठे हैं सोफे पे. वी आर इन द लिविंग रूम एंड पीछे बेडरूम है, पूल है, सब चीज़ें हैं. और यहाँ पे मनोज जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, दिपेश बैठे. वी टॉकिंग एंड टॉकिंग. बात चल रही है. अभी वेट कर रहे हैं. तो शाम का टाइम होता, थोड़ी सी उनको नींद आनी शुरू हुई. तो उन्होंने कहा कि चलो मैं सो जाता हूँ. तो ऐसे ठीक है, मैं और दिपेश रूम में चले जाते हैं, अपन अंदर जाके सो जाओ. दिन से नहीं मानचू तू यहाँ बैठ, दिपेश तुम बैठो, मैं ना एक आधा घंटा बस नैप ले लेता हूँ थोड़ी सी. तो उन्होंने टेबल को साइड में किया, सोफे पे भी नहीं, वो कारपेट पे. आई स्टिल रिमेंबर यार, दैट मैन जस्ट लाइट डाउन एंड स्लेप्ट. And me, I'm looking at Dipesh is looking at me, and we're looking at Manoj, and he's sleeping. He's just gone off to sleep. And it touched me so much, yaar. That man, unbelievable humility. कोई परवाह नहीं किसी भी चीज़ की. But it just touches the core of your being. कि यार ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब चीज़ें हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं. वो अपनी धुन में है, मतलब अपनी कला की धुन में है. उनको कोई लेना देना नहीं कि कौन देख रहा है, मैं कहाँ हूँ, कौन सा स्वीट है, क्या है. सोना है तो सो गए बस. बहुत अच्छा. And yet he loves his prosecco. He loves that. He loves. But Yes. Beautiful story. अच्छे इंसान है बड़े. Yeah, a lot of people who would be watching will also be aspiring actors and working on the craft or whatever. I just want to understand from you your process, because I know you've been working a lot on your craft over the past few years. You've done, you've studied Meisner, you've done Chekhov as well. Now we've been working with Rupesh Tillu. Correct. All of these. All the workshops in the past. Wonderful. बहुत सारे workshops के पिछले 10 सालों में. Yes. What's your process as an actor? Just tell me. Okay, in point is okay. This how we go. So something has changed 3 days back, predominantly.
या अराउंड 3-4 days बैक। तो पहले का प्रोसेस और अब का प्रोसेस बताते हैं। तो पहले जब सीन मिलता था तो व्हाट आई विल डू, मेरा एक पेन होता था या आईपैड पे मार्किंग्स, तो मैं सारी चीज़ों का थॉट, सब टेक्स्ट, मेरी पूरी स्क्रिप्ट रेड हो जाती थी एंड आई विल मार्क एवरीथिंग, सारी चीज़ें, टोन्स क्या होंगी, क्या मतलब हर चीज़ एक तरह से मार्क हो जाती थी और मैं उसमें डिटेलिंग खोजता रहता था, कौन सी लाइन अपनी बनानी है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें करता था। एंड वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर ऑब्वियसली आप उसको अपने को आर्टिस्ट के साथ या किसी फ्रेंड के साथ अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा रियाज कर लेते हो और उसके साथ एंड मेकिंग श्योर दैट आप उस मोमेंट में रहो और सुनते रहो बस ध्यान से। अब मैंने कुछ दिनों पहले पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट रियलाइज्ड दैट व्हाइल मार्किंग माई होल स्क्रिप्ट रेड, आई एम फिक्सिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स and I should not be fixing, because whatever is going to happen in the moment, it's going to be absolutely new. And what happens is when we fix certain things कि ऐसे करना है, हम उसी past को वहाँ replicate करने की कोशिश करते हैं, which is false basically। उसके truest चीज़ को आपने हटा दिया वहाँ से। तो अब मैंने क्या किया, कुछ दिनों पहले से जब ये काम चल रहा था, 3-4-5 दिन, हफ्ता जो भी हुआ, मैंने जो भी सीन्स अब आए मेरे पास, मैंने उनको ब्लैंक स्लेट की तरह रखा। मैंने कहा ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे कि उसमें कुछ नया कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एंड देन आई रियलाइज कि वहाँ पे जाके सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। एक कि उस मोमेंट पे जो भी आपको महसूस हुए, सामने वाले को सुनना सबसे ज़्यादा, डीपली लिसनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, डीप लिसनिंग, डीप फोकस। इट्स ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग ऑफ मीनिंग कि मैंने अपने आप को भूल के सारा फोकस आप पे डाल दिया कि when I'm performing, when I'm acting, तो सीन है। अब जाहिर से बात, आपकी लाइन से मेरी लाइन है, मेरी लाइन से आपकी लाइन है, आपकी लाइन से मेरी, सब कनेक्शन होता है ना सीन, जैसे हम अभी बैठे जैसे हम बात कर रहे हैं। तो जो बस इतना करना है कि मैंने सारा फोकस आप पे डाल दिया, मैंने अपने आप को छोड़ दिया, मैंने अपने मैं को छोड़ दिया कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे शाइन करना है, मुझे ये करना है। नाउ वट एवर यू विल से, आई विल जस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट ट्रूथफुली। बस इतना ही एक्टिंग है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना ही सिंपल मैं कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा जब करने की कोशिश करते हैं तो हम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ज़्यादा करते हो तो फिर बात नहीं आ जाती है कि दाल में जितना नमक चाहिए उतना ही नमक अच्छा है, उससे ज़्यादा खराब हो जाती है। And I saw your performance a couple of days ago. I think you were very in the moment, very present. And वो कहते हैं ना कई बारी, that acting needs to flow through you. Yeah. Right? The dialogues need to flow through you. They should come out as if they're being said for the first time. Yes, exactly. And I did experience that. Thank you. That's very kind of you. Thank you. इसमें बस add on to this that I also understood over a period of time. I think पिछली बार मैंने बात की थी जब मैं और परी सीन कर रहे थे कि यार मुझे एहसास हुआ था एक बात का कि एक होता है कि आप सीन कर रहे हो, एक है सीन आपको कर रहा है। So it's थोड़ा सा ही फर्क हो जाता है। इतना सा फर्क है, but if you again समर्पण ये, let the scene do you, let the scene flow through you. 100%. When you try to do, हमारी आदत है यार, हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करने की। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभिनय ऐसे करना है, मतलब एक्टिंग ऐसे। इसका उल्टा भी आपने बोला कि जीवन ऐसे जियोगी जैसे अभिनय करो। तो जीवन एक्चुअली मैं इसका भी उल्टा भी उतना ही प्रोफाउंड है कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय करो। मतलब you can't take anything seriously. पता नहीं कौन सी रोड पे आप क्या हो जाएगा, what moment you will die. So just take it lightly, take it sincerely, don't take it too seriously, and enjoy life. You don't know, nobody knows what's going to happen. I have seen things changing in a flux of a moment when my dad's demise happened on my birthday. I was in Singapore celebrating my birthday. तो एक लम्हे में चीज़ें पलट जाती हैं। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जीवन ऐसे पलटता है। तो मज़े करो, एंजॉय करो, आनंद में रहो और आगे बढ़ो। Now I just want you to give me 3 recommendations of books because I know you read a lot. Yeah, I must say gone to that too much, but अगर पढ़ सकते हैं तो जो मेरे सर ने मुझे दी थी बड़ी अच्छी किताब है, द पावर ऑफ नाउ। की उनकी बहुत सारी और किताबें भी हैं, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ है, स्टिलनेस स्पीक्स भी है। आप पावर ऑफ नाउ पढ़ लो तो वो प्रोफाउंड किताब है, बड़ी अच्छी है। ओशो की कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो, बड़ी एक 40 रूल्स ऑफ लव बड़ी अच्छी किताब है, 40 रूल्स ऑफ लव के बारे में। दैट इज अ ब्यूटीफुल बुक। आई थिंक वो ना थोड़ा सा सिखाती है कि जिंदगी में बेपरवाह कैसे होना है। 3 movie recommendations. रिकमेंडेशंस का तो नहीं पता, जो मुझे पसंद है मैं बोल देता हूँ। मुझे ये जवानी है दीवानी बहुत पसंद है। I think pretty much everyone's kind of seen, especially. अभी रिसेंटली मैंने मैदान देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी।
एक मेरी फिल्म थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, वो लोगों ने बहुत बार देखी, मैं भी बार देख चुका हूँ उसको, शेरशाह। दैट वाज अ वंडरफुल फिल्म, बड़ी अच्छे से बनाई गई थी वो फिल्म। Thank you so much, Himanshu bhai, for coming and being a part of this. I hope you had fun. आपने पानी पिया ना, आप कुछ खाते हो ना पीते हो? हाँ यार, पानी ठीक है, बस इतना ही बहुत। Thank you so much. I'm filled with gratitude. It's been amazing. बाकी बातें तो बनाते रहेंगे।